Good morning, student. I, Kinnari Dave, welcomes you all for Standard 11, Part 9 of Unit 2, Structure of Atom. In this part, we are going to study about the electromagnetic radiation and development of Bohr's atomic model. Student, actually, the light and other forms of energy which have the properties without any medium in the space in the form of waves. This light and other form of energy which is considered as a radiant energy, and these waves can be produced by any of the charged body which is moving in a magnetic or इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टूडेंट अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये अगर आप कहीं कोई गेम खेल रहे हो ऐसा हम माने स्टूडेंट, एंड वो गेम में अगर आप इस तरह से कंटिन्यूअसली घूमते रहते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इस तरह से अगर आप घूमते रहते हो तो आपके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी प्रोड्यूस होने से आपकी बॉडी जो है वो हीट फॉर्म करती है या तो गर्म हो जाती है. यही बात यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे. The Newton has given that the light is made up of particles, and this particle nature of light is explained by many of the scientists such as reflection and refraction of light. Student, in this smaller class you have already studied about the reflection and refraction. Now suppose we'll talk here about the reflection. Here it is a prism. In this prism, when this ray of light incident and when it comes out from the prism, it just split into this 7 different colors which you are knowing as Vibgyor. So this way it will just split into 7 different colors. Here just we are trying to understanding student reflection and refraction difference only. So this is the splitting formula, student, splitting. Now here one more example we'll just see. This is a glass filled with water. Here the water is filled. When you are in maybe 8th or 9th class, this experiment you have maybe done also, or it was given in your science textbook also. So when water is filled in it and one of the pencil as you are inserting in this glass which is filled with water, and you are trying to observe it from this top. Now student, when you are trying to see this pencil which is there inside the glass, means this portion
when you are trying to see, you can see just it may be band. You can see that pencil portion may be band portion. That is due to the refraction of light. The refraction means student, जब ray of light, this is your air medium and this is your water medium. So when the ray of light pass from one medium to another medium, it just change its path, that is known as refraction. वो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो. तो ये मैंने सिर्फ यहाँ आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिफरेंस समझाया. As student Dalton, Thomson, Rutherford, and after Niels Bohr was the first who suggested the atomic model for hydrogen. Actually, you know that Rutherford has suggested that electron revolves around the nucleus in well-defined orbit. अगर हम यहाँ पर ये एक बॉल समझ लेते हैं, तो यहाँ हम इस तरह से मान सकते हैं कि ये जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है. So, and which is known as the orbit. ऐसा रुथरफोर्ड का मानना था स्टूडेंट कि this is known as orbit. But problem was that student, अब अगर आप फिर से अपनी ही बॉडी को कंटिन्यूअसली मूवमेंट करती हुई अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ ऐसा खेल खेलते हो कि वो खेल खेलते वक्त आप अगर कंटिन्यूअसली गोल गोल घूम रहे हो, मतलब इस तरह से आप गोल 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 कंटिन्यूअसली जब घूमते जाते हो, तब आप देख सकोगे कि थोड़े समय के बाद when you are there in the rest position, तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो पोजीशन है वो पोजीशन पे प्रॉपर नहीं हो. मतलब जब आपने गोल घूमना शुरू किया था, उसके बाद में ऐसे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे स्टूडेंट, और फिर जब फाइनली आप स्टॉप हुए, तो हो सकता है कि आप कोई ऐसी जगह पे आके अटके हुए हो. सो द प्रॉब्लम वाज दैट कि व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज अनस्टेबल एंड एज अ मूविंग बॉडी लूज द एनर्जी, जो अभी हमने बात किया कि आगे तो हमने यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है और मूविंग बॉडी क्या करेगी स्टूडेंट, अपनी एनर्जी जो है उसे वो कंटिन्यूअसली लूज करती रहेगी. तो जब ये मूविंग बॉडी कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करती है, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके पास में, ये जो मूविंग बॉडी है उसके पास भी एनर्जी रही ही नहीं होगी, और फिर क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर जाके घुस जाएगा. ऐसा रुथरफोर्ड का मानना था स्टूडेंट. मतलब फिर से अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ये हमारा न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है स्टूडेंट, ये एक ऑर्बिट है और वो ऑर्बिट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग कंटिन्यूअसली इन इट्स ऑर्बिट, तो ये जब घूमता रहेगा तब क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर देगा और फिर फाइनली वो ऐसे न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा, ऐसा मानना था. पर एक्चुअली ये होता नहीं है, ये बात गलत है. सो
In 1856, Maxwell has proposed that the light and the other forms of radiant energy propagate through space in the form of waves. ऐसा बताया मैक्सवेल ने कि waves के थ्रू वो स्पेस में propagate होती है and these waves have electric and magnetic both the field. So therefore it is known as electromagnetic radiation. Here student, when electrically charged particle move acceleration, acceleration का मतलब क्या हुआ आपको पता है कि कंटिन्यूअसली जब बॉडी मूव करती है तो वो ड्रैग आउट मतलब एक्सीलरेट होती है. सो हियर दैट मैक्सवेल सेज दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल moves under acceleration, both the fields are here. Alternatively, electrical and magnetic field produce and produce तो होता है स्टूडेंट, साथ में ट्रांसमिट भी होता है. नॉट ओनली प्रोड्यूस बट दिस फील्ड ट्रांसमिटेड ऑल्सो. तो ये बात जो है वो भी यहाँ पर जरूरी है. So this field is transmitted also student. ये जब सबसे पहले मैक्सवेल ने 1856 में बताया तो उसके बाद में उसने ये बताया कि दिस वेव्स possess two characteristics and on the basis of this Bohr has developed the atomic model for hydrogen. पर अब बोर का जो मॉडल था उसमें भी एक प्रॉब्लम आया. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन possess हाइड्रोजन स्टूडेंट? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द हाइड्रोजन? गुड, हाइड्रोजन इज हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन. सो बोर ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया वो उसी स्पीसीज के लिए काम का था जिसके अंदर सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो ये एक बोर का लिमिटेशन था. अब यहाँ पर ये जो एक मैंने दिखाया है आपको ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये जो है ये मैंने आपको बताया है. तो वहां आप देख सकते हो और इसके साथ में आपको शायद 10th स्टैंडर्ड में आप लेफ्ट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड थंब रूल पढ़ के आए हो, याद है कि नहीं स्टूडेंट? आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है लेफ्ट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड थंब रूल. उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये क्या बता रहा है स्टूडेंट? वो जो थंब रूल है वो क्या बता रहा है? Here you can see that it is shown that electric field this is the electric field, this is the magnetic field and this is the direction of the propagation of the wave. मतलब ये बात अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसके बाजू में जो फिगर दिया है उसके ऊपर से हम समझते हैं स्टूडेंट कि ये जो रेड कलर का दिया हुआ है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी मूवमेंट जो है वो हमें इस तरह से दिखाई दे रही है स्टूडेंट. दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो नीचे के साइड में मतलब हमारा ये जो ब्लू कलर का वेव्स दिख रहा है स्टूडेंट वो है हमारी डायरेक्शन ऑफ द ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर हमें बताया है. तो टोटली ये आपका हुआ. यहाँ अगर हम देखते हैं तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, देन
here it is your y-axis, this is your y-axis, and here you can see it is your z-axis. तो यहाँ इसी तरह से हम करते हैं. ये जो हमारा रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो x एक्सिस के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, नीचे सॉरी वो y एक्सिस के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, नीचे का ब्लू कलर जो है वो z एक्सिस के ऊपर मूवमेंट कर रहा है. तो जो डायरेक्शन ऑफ द वेव है, मतलब ये जो प्रोपोगेशन हो रहा है स्टूडेंट, वो है सीधी डायरेक्शन में x एक्सिस में. मीन्स यू कैन से दैट all the three are perpendicular to each other. Now from this thumb rule you can understand very clearly जो मैंने आगे बताया कि ये जो है आपका यहाँ पर आपको मोशन के लिए ये बताया हुआ है. दिस इज योर मोशन. Then this first finger it is shown the field and the second figure is shown the current. तो इसी के ऊपर से हमने ये डेवलपमेंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. Two characteristics that the consist of electric and magnetic field that oscillate in the direction perpendicular to each other and perpendicular to directions in the wave which traveling. तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई स्टूडेंट. मैंने जो आपको समझाया वो कि ये जो है आपका एक ये वेव इधर से इधर प्रोपोगेट कर रहा है, मतलब ये वेव की डायरेक्शन है आपकी, और आप दोनों ये जो लाइट वेव्स है उसको आप दोनों फील्ड की अंडर में लगा रहे हो. तो यहाँ पर ये जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, और फिर आप इसके साथ में जब मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हो स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा है आपका. तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड. तो उसके ऊपर से आपको समझ सकते हो कि ये तीनों तीन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. Then second characteristic is all electromagnetic waves travel with the same velocity. और वो वेलोसिटी जो होती है वो लाइट की वेलोसिटी होती है. स्टूडेंट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? करेक्ट, 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिशन हो रहा है वो रहेगा 3 into 10 raised to, मतलब जो हमारी लाइट की वेलोसिटी है वो ही वेलोसिटी के हिसाब से ये प्रोपोगेट कर रहा है. सो मीटर पर सेकेंड. And the next characteristic is this electromagnetic radiations do not require any medium for propagation. स्टूडेंट, आपको अगर सिंपल सा एक एग्जांपल बताती हूँ तो आप लोग ने ये भी देखा है कि लाइट रेज जो है, सन की लाइट अर्थ के ऊपर डायरेक्टली फॉल करती है, उसके लिए यहाँ पर कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है. ये जो आपके सनरेज है वो एक के बाद एक जब अर्थ के ऊपर आते हैं तो सारी अर्थ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं. तो दिस रेज ऑल्सो डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. उसी तरह से हमारे जो ये रेज है दे ऑल्सो डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. और एक ये प्रोपोगेशन के लिए एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ स्टूडेंट. एक पानी भरा तालाब है, वो पानी के भरे हुए तालाब में आप पत्थर डालते हो तो क्या होगा? when you just throw the stone into the water, तो ये आपका जो पानी का भरा हुआ तालाब है
वो पानी अच्छे से उसमें एकदम से स्टेबल वाटर है, मतलब पानी बहता हुआ नहीं है, ये तालाब में पानी है। अब आप जब उसमें पत्थर डालोगे स्टूडेंट, तो पत्थर डालने से आपको पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या होगा, वेव्स क्रिएट होंगे इस तरह से, है ना। और वो वेव्स जो है वो ऐसे चलते रहेंगे। तो इस तरह से हम उसे कंसिडर कर सकते हैं कि दिस वेव्स आल्सो डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स of the electromagnetic radiations. Means they can pass through the vacuum also. नाउ बोर का जो पोस्टुलेट है वो समझने के लिए स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बोर हैज प्रपोज्ड द मॉडल and said that electron revolves around the nucleus in the fixed orbit and which is associated with the definite energy that is called shell. वो आप स्मॉलर क्लासेस में इसके बारे में भी पढ़ के आए हो स्टूडेंट कि शेल, सबसेल, तो उसको के एल एम एन इस तरह से नाम देते हैं हम। फिर उसमें एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हैज गिवन कि के एल एम एन ऐसे शेल होगा और उसमें हर एक की इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेट करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब हम पोस्टुलेट 1 के बारे में समझते हैं स्टूडेंट कि पोस्टुलेट 1 जो है वो क्या बता रहा है हमें। सो दिस इज द पोस्टुलेट 1 which shows that electron revolves around the nucleus in a fixed circular orbit or fixed circular path which is known as orbit. तो इसमें ऐसा कहने का मतलब है कि एटम possess the nucleus and electron revolves around it। मतलब कि अगर आपका घर कहाँ है वो मुझे पूछना है तो आप मुझे क्या बता सकते हो, आप कहोगी कि ये मेरा एड्रेस है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है वो जानने के लिए हमारे पास में जो भी स्पेस है, तो वो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ और उसे हम कहेंगे ऑर्बिट। अब ऑर्बिट जो है वो स्टेशनरी भी होती है और उसके बाद में वो एक्साइटेड स्टेट भी होता है स्टूडेंट। जैसे कि अगर हम बात करें कि ग्राउंड स्टेट में, मतलब कि जो सबसे नीचे का, सबसे नजदीक का जो शेल है वो शेल को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के पास वाला ये शेल है हमारा। तो ये शेल जिसे हम स्टेशनरी सेल या स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, दिस इज द स्टेशनरी स्टेट। and in this stationary state it is having the constant energy। और फिर उसके बाद में आगे जाते हैं, ये दूसरा है तो वो एक्साइटेड स्टेट हुआ। उसके बाद में और आगे जाएंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट हुआ और इसमें अगर हम n की वैल्यू सपोज करते हैं स्टूडेंट, तो n की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। मीन्स हियर द वैल्यू ऑफ n इज 1, हियर इट इज 2 एंड हियर इट इज 3। उस तरह से आगे हम इसको बता सकते हैं। So electron have the constant energy, so it did not go into the nucleus। तो मतलब कि ये जो पाथ में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, जब तक उसको कोई दूसरी एनर्जी बाहर से मिलती नहीं है तब तक वो इसी में ही घूमता रहता है। ये कहने का मतलब हुआ कि वो अपने ही पाथ में, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के पास में यही एनर्जी में तो यहाँ पर ही घूमता रहेगा
और अगर इधर घूमने वाला है तो वो इधर ही घूमता रहेगा। सेकेंड पोस्टुलेट के बारे में अगर स्टूडेंट हम समझे तो सेकेंड पोस्टुलेट में बताया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट whose angular momentum mvr in an integral multiple of h by 2 pi। अब इसको हम किस तरह से समझेंगे, तो ये हमारा एटम है, यहां से ये है वो हमारा रेडियस हुआ, दिस इज द r, and the electron which is having or any of the moving body which is having the mass m, तो उसका मास m है, मतलब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करते हैं which is having the mass m। और अगर उसके साथ में हम कंसिस्ट करें कि वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है, तो यहाँ से वो मूवमेंट करेगा, तो ये है उसका वेलोसिटी, वो कौन सी वेलोसिटी से मूवमेंट करता है, तो दैट इज नोन एज mvr। और अभी एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम मीन्स the tangent or we can say the angle, ये जो है ये एंगल जो हमारा बना, टेंजेंट जो है दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम और विच इज डिनोटेड एज थीटा। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम यहाँ पर जान सकते हैं। सो दिस पोस्टुलेट सेज एनी बॉडी विच इज हैविंग द मास m moves on a circular path with the radius r and velocity v. So angular momentum is equal to mvr। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टूडेंट, angular momentum is equal to mvr और it is an integral multiple of h by 2 pi। अब इसका मतलब समझाती हूँ स्टूडेंट, h बाई 2 पाई मतलब यहाँ पर एक्चुअली जो है वो हमें nh बाई 2 पाई कंसिडर करना है। n का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो हमें मालूम है n इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से हम करते हैं, मतलब फर्स्ट शेल सेकेंड सब सेल उस तरह से, तो nh बाई 2 पाई ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है। और अगर n की वैल्यू 1 है तो वो h बाई 2 पाई देगा वैल्यू, है ना। n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमें मिलेगा h बाई 2 पाई। सपोज n की वैल्यू 2 पजेस करते हैं, सो यहाँ पर रहेगा 2h बाई 2 पाई, तो यहाँ पर भी आपका 2 2 कैंसल हो जाएगा स्टूडेंट, तो फिर से यहाँ भी आपके पास में रहेगा h बाई अब अगर 3 n की वैल्यू 3 लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ आपको मिलेगा तो 3h बाई 2 पाई, जैसे आप कंसिडर कर सकते हो 3h बाई 2 पाई। तो इसका मतलब यहाँ ये लिया है कि जो वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की, वो वैल्यू जो होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोस्टुलेट। Now we'll come to the next postulate, and that postulate is shows that as long as electron occupy a definite energy level, it does not lose or gain energy। मतलब कि जब तक उसको जहाँ जाना है वहां तक वो नहीं पहुंचता है तो वो लूज और गेन एनर्जी करता नहीं है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट।
And the next postulate is the energy emitted or absorbed only when the electron jump from one energy level to another. इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ स्टूडेंट कि ये जो है एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप तभी कर सकता है कि जब उसको बाहर से कोई रेडिएशन से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ये घूमता घूमता ये हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। एंड फिर वो घूमते घूमते जैसे फिर से उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी स्टूडेंट, तो अगेन इट कम्स बैक टू इट ओरिजिनल लेवल। So that is the higher energy level is known as excited state, and by losing the energy it comes back to the lower energy level. स्टूडेंट ये जो यहाँ मैं आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमने आगे की स्लाइड में समझा है वही बात यहाँ पर है। ये जो है वो हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सबसे नजदीक में आया हुआ ये के शेल है जिसमें एन की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे आया है वो हमारा एल शेल है जिसमें एन की वैल्यू 2 होती है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आया हुआ है वो एम शेल है जिसके पे एन की वैल्यू 3 होती है, एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहता है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस में अगर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ दिखाया है वो n इज इक्वल टू 1 जो है उसमें घूमता रहता है, और ये 1 में से यहाँ से बाहर से उसको फोटोन के वेव्स में कोई एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और फिर यहाँ से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ये ऊपर की स्टेट में जाता है, जो यहाँ आपको दिखाया है स्टूडेंट कि ये है उसकी ग्राउंड स्टेट, मतलब ये है के शेल जहाँ एन की वैल्यू 1 है। अब ये जो एनर्जी उसने बाहर से गेन की उसके बाद में वो एक्साइटेड स्टेट में घूमना शुरू कर रहा है, तो दिस इज द excited state. But when it is possible, when and when only it absorbs the energy or it gets the energy from any of the higher sources. अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट। ये जो है हमने यहाँ पर जो बेरिलियम के लिए हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास में, ये उसका ग्राउंड स्टेट है। अब जब एक्साइटेड स्टेट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले आके पी ऑर्बिटल के अंदर, पी सबसेल के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s1 एंड ये 2p1। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन है स्टूडेंट। अब उसके बाद में जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ रहा हुआ ये जो एस ऑर्बिटल का आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ये फिर से 2p शेल में चला जाएगा। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s1 1s1 2s1 and 2p1।
2। तो इसे हम कहते हैं कि बोहर ने यही समझाया कि जब तक इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी देता नहीं है तब तक वो अपनी ओरिजिनल जो एनर्जी लेवल है उसी में ही घूमता रहता है। Suppose the electron having mass m and the charge is E. So it revolves around the nucleus. तो वो चार्ज को Ze चार्ज कहेंगे एंड वेलोसिटी v है और रेडियस r है। तो यहाँ पर जो है वो f की वैल्यू हो जाएगी kz²/r²। स्टूडेंट ये सारी वैल्यू हमें सिर्फ याद रखनी है, उसमें हमें न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू रखने की होती है इसलिए इसका कैसे कैलकुलेशन है वो हमें देखना नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो nth ऑर्बिट में घूमता है, इफ इलेक्ट्रॉन revolves in nth orbit, then angular momentum is considered as a nh/2π। और फिर अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये इक्वेशन को चेंज करने से हमें वेलोसिटी के लिए nh/2πmr मिलेगा। और टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। So what is the conclusion we get from this postulate? Finally हम क्या पता चला इसके ऊपर से? So negative sign of energy which indicates attraction between the negative charge electron and positive charge nucleus। ये बात यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि negative sign of energy indicates attraction between negatively charged electron and positive charged nucleus. Second is energy of an electron is constant as long as the value of n is constant। मतलब जब तक n की वैल्यू मतलब वो n इज इक्वल टू 1 में ही घूमता रहता है तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो ये जो है न्यूक्लियस में कभी भी घुस नहीं सकता है। एंड उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n²। n मतलब आपको पता है कि 1 2 3 वैल्यू जो लेते हैं वो। तो जो भी एनर्जी लेवल में वो घूमता रहेगा वो उसकी एनर्जी उसमें प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। अब बोहर मॉडल की लिमिटेशन भी कुछ थी स्टूडेंट्स की बोहर मॉडल इसीलिए आगे एक्सेप्ट नहीं हुआ और उसके बाद में हमें क्वांटम मैकेनिक्स तक जाना पड़ा। तो व्हाट इज द बोहर मॉडल लिमिटेशन? सो द फर्स्ट ऑफ ऑल बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। आपको पता है कि बहुत सारे अभी जैसे मैंने आपको बताया प्रिज्म में से जो विबग्योर निकलता है तो उसे हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। उसमें आपको पता है कि रेड कलर जो है वो सबसे ऊपर होता है और वायलेट कलर है वो स्प्लिटिंग में सबसे नीचे रहता है। तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रा बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन। एंड इवन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन मतलब कि अगर मुझे हीलियम के लिए उसको फाइंड आउट करना है तो बोहर मॉडल ये जो आगे का हमारा कंक्लूजन है वो शो नहीं करता था। नेक्स्ट इज बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन। मतलब जो विजिबल रेज है, जो यूवी रेज है, गामा रेज है, माइक्रोवेव रेज है, वो सभी रेज जिसको हमें आगे पढ़ना है स्पेक्ट्रा में तो उसमें से
किसी के भी प्रेजेंस के बारे में बोर मॉडल नहीं बताता था. So that is the second limitation. And the third limitation for this is it do not have any conclusion for the angular momentum also. Even it does not show the de Broglie concept and Heisenberg uncertainty principle. ये तीनों तीन हमें आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, पर ये जानना जरूरी है कि दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल. Thank you, student. I think you are well versed with this electromagnetic radiations. And then also, if you have any of the doubt and query, you can mail me. And please do like and subscribe my channel, student. Thank you so much.